Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is part 9 of unit number 2 block diagrams and signal flow graph of subject automatic control system. In today's video we are going to study Mason's gain formula and by using this Mason's gain formula we will be calculating the transfer function or say overall transfer function of a signal flow graph. You have studied and we have seen in last few videos how to convert a block diagram into a signal flow graph, as well as we have studied how to convert a mathematical algebraic equations into signal flow graph. So after converting them into signal flow graph, we are going to use Mason's gain formula for solving the signal flow graph, or say for calculating transfer function of that signal flow graph. So Mason's gain formula, basically it is used to find the overall transfer function of the signal flow graph. Now in block diagram reduction we used to reduce the blocks in by using the rules, various rules like parallel connection, feedback connection, series connection, and then we used to convert the gain or the transfer function of the block by using the respective formulae. Okay, now this was a bit complicated process, therefore we shifted to signal flow graph, in which we use only branches and nodes for representing the signals as well as the gains of the blocks. Okay, now at the end of block diagram reduction we used to get single block with a single input and single output, and by using the regular formula of transfer function we used to calculate, or we used to find the transfer function of that single block, which is the representation of overall transfer function of the physical system. Now similarly in signal flow graph we are reducing the block diagram to a signal flow graph, which is again representing a overall physical system. Now again we want to calculate the overall transfer function of this physical system, which is converted into a signal flow graph, and this is the purpose of the Mason's gain formula. We calculate it by using the Mason's gain formula. Now let us now discuss the Mason's gain formula. Suppose there are n forward paths. We have seen various paths in the signal flow graph. We have seen forward path, then we have seen feedback path, we have seen loop, touching loops, non-touching loop, then dummy nodes, we have seen loop gain, we have seen the gain of the path, say path gain, then we have seen the self loops. Okay, so suppose there are n number of forward paths in a signal flow graph. The gain between the input and the output nodes of a signal flow graph is nothing but transfer function. The gain that is represented between the input and output nodes is nothing but the transfer function of the system. Now it can be calculated by using Mason's gain formula. Now in actual, let us see what is Mason's gain formula. The Mason's gain formula is given by T is equals to, that is your transfer function is equals to Cs divided by Rs, or C of S divided by R of S, which is your output divided by input, or Laplace inverse of output divided by Laplace transform of output divided by Laplace transform of input signal, which is given by summation I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n Pi into delta I divided by delta. Now this Pi sometimes is also written as Fi. Okay, this is the representation of path, forward path. Okay, it represents the path. This is delta, this is the representation of system determinant. Okay, and this I is nothing but your ith forward path. Like it is second, if this I is equals to 2, that means there are two forward paths, so this will be 2, so it will be written as P2 delta 2. Similarly, if we have 3, so it will be written as P3 delta 3. Okay, so let us discuss what are the various terms in it.
CS represents output node, RS represents input node, T is the transfer function or gain between this input and output, P is ith forward path, P जो है वो ith forward path है, ओके मतलब जितने नंबर का पाथ रहेगा उतना नंबर वहां I की जगह पर आ जाएगा. Then this is your delta. Delta is nothing but system determinant. System determinant है वो उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया है. It is equals to 1 minus sum of all individual loop gains. अब जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ रहेगा इसमें कुछ इंडिविजुअल लूप्स रहेंगे. इंडिविजुअल लूप्स मतलब जो एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं. लूप मतलब क्या रहता है, जो जिसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है. तो ऐसे कुछ सिंगल इंडिविजुअल लूप्स रहेंगे. तो ऐसे इंडिविजुअल लूप्स जो रहेंगे इसका क्या लेना है, गेन लेना है और उसका क्या करना है, आपको समेशन करना है. सो दैट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप्स. अब इसमें कुछ ऐसे भी लूप्स रहेंगे कि जो नॉन टचिंग टाइप के लूप्स रहेंगे. तो ऐसे जितने भी पेयर्स हैं, नॉन टचिंग लूप्स के जितने भी पेयर्स हैं, इनके गेन का क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है. जैसे लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 ये दोनों भी नॉन टचिंग लूप्स हैं. तो इनके गेन का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, समेशन करेंगे. तो ऐसे जितने भी नॉन टचिंग लूप के पेयर्स है, ओके 2 वाले जितने हैं, तो ऐसे पेयर्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन और उसका बाद में एडिशन करना है. सो दिस इज सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 3 नॉन टचिंग लूप्स. अब इसमें कुछ ऐसे भी लूप्स रहेंगे कि जो 3 के फॉर्म में रहेंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स रहेंगे. समझो L1, L2 और L3 है जो एक दूसरे को नॉन टचिंग लूप्स है. तो ये ऐसे नॉन टचिंग लूप्स का जो ग्रुप रहेगा इसका क्या करना है, गेन का मल्टीप्लिकेशन करना है. जैसे L1 के लिए से x गेन है, L2 के लिए y गेन है, L3 के लिए z है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z ये उसका गेन का प्रोडक्ट हो जाएगा. और इस प्रोडक्ट को बचे हुए दूसरे ग्रुप के प्रोडक्ट के साथ में क्या करना है, ऐड करना है. सो दैट इज सम. ओके देन डेल्टा आई, ये डेल्टा आई क्या है, ओके डेल्टा आई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेल्टा बाय रिमूविंग द लूप्स विच आर टचिंग द ith फॉरवर्ड पाथ. अब हम क्या करेंगे, डेल्टा जैसा ही कैलकुलेट करते हैं ऊपर उसी तरीके से डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, बट इट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द स्पेसिफिक पाथ. जैसे पाथ नंबर 1 है सो इट विल बी डेल्टा 1, जितना पाथ नंबर 2 है सो इट विल बी डेल्टा 2. तो पाथ नंबर 1 में हमको देखना है कि बाय रिमूविंग द लूप्स विच आर टचिंग, तो ऐसा देखना है डेल्टा 1 में. ओके डेल्टा 1 या पाथ 1 में हमको ऐसे लूप्स देखना है कि जो नॉन टचिंग है. ओके और उन नॉन टचिंग लूप्स के लिए आपको क्या करना है, ये डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है. ओके सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस ऑल द लूप्स दैट डू नॉट टच दैट फॉरवर्ड पाथ. मतलब जो पहला पाथ अगर आप लेंगे, फॉरवर्ड पाथ अगर फर्स्ट नंबर का लेंगे तो उसको ऑल द लूप्स दैट डू नॉट टच ith फॉरवर्ड पाथ, उसका क्या करना है, गेन लेना है. ओके सो इट विल बी मोर क्लियरर व्हेन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. हम जब ये न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब ये और आसानी से आपको समझ में आएगा. ओके सो लेट अस गो अहेड. देयर आर सम स्टेप्स फॉर सॉल्विंग सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट ऑल पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ. जितने भी फॉरवर्ड पाथ है उनको फाइंड आउट करो और उनके गेन्स को क्या करो, कैलकुलेट करो. जैसे फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे F1, फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे F2, या इसकी जगह पर आप P1, P2, P3 ऐसा भी यूज कर सकते हैं. सो फॉरवर्ड पाथ नंबर P1 जो रहेगा उसको फाइंड आउट करो. ओके पाथ नंबर 1 को फाइंड करो. फाइंड करने के बाद में उसके गेन्स को क्या करो, फाइंड आउट करो. फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है, सो इस पाथ नंबर 1 के लिए जो भी हमारे नोटेशंस है वो कुछ इस तरीके से अगर है, जैसे x1 है, x1, x2, x3 है, तो इन x1, x2, x3 के बीच में जितने भी गेन्स रहेंगे इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ ईच अदर. से x1, x2 के बीच में a गेन है,
सो उसको वहां पर a लिखेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय x2 x3 के बीच में b अगर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे b से. सो योर फॉरवर्ड पाथ 1 विल बी x1 x2 x3. ओके, योर फॉरवर्ड पाथ विल बी x1 x2 x3 and its gain will be a, please mind, a multiplied by b, or simply written as, it will simply be written as a b. Okay, okay. So similarly calculate for forward path number 2, forward path number 3. Okay, this will be finding all possible forward paths and their gains. So first step number 1. Step number 2 is find out all single individual loops. We have to find all the single loops and their respective gains. Say these loops are L1, L2, L3, or it is also represented as L11, L21, L31, where this second one represents single loop and this one represent first of that single loop or first of that individual loop. Similarly, this one represents individual or single loop and this two represents second loop of that individual loops. Okay, so find out all these loops and their gains, respective gains. Find out all two, that is pair of non-touching loops. ओके, इसमें जितने भी नॉन टचिंग लूप्स है वो फाइंड आउट करो और उनके गेन्स को क्या करो, राइट डाउन करो. जैसे कि यहां पर मैंने लूप L12 लिखा है. सो दिस L12 इज नथिंग बट द गेन, L12 इज नथिंग बट गेन ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप. पहला जो पेयर है नॉन टचिंग लूप का, उसका क्या है, वो गेन है. ओके, L22 क्या है, सेकंड नॉन टचिंग लूप पेयर का गेन है. नॉन टचिंग लूप मतलब क्या है कि जो नोड्स एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इसको बोलते हैं नॉन टचिंग लूप. ओके, देन फाइंड आउट ऑल 3 नॉन टचिंग लूप्स. अब 3 नॉन टचिंग लूप के ग्रुप को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसका गेन भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ऐसे गेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे L13, L23 से, या सिंपली हम उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नोटेशंस. ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स पहले 3 नॉन टचिंग लूप का ग्रुप का गेन. ओके, अगेन फिफ्थ स्टेप इज दिस हैज टू बी कंटिन्यूड. ये कंटिन्यू करना है जब तक आपको पता ना चल जाए कि आपका प्रोसेस स्टॉप ना हो जाए. जैसे यहाँ पर 3 नॉन टचिंग लूप्स लिया हमने, तो इसके बाद 4 नॉन टचिंग लूप्स के लिए करना है, 5 नॉन टचिंग लूप्स के लिए करना है. ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नॉन टचिंग लूप्स तक हमको आता है, तो बहुत हुआ तो 3 नॉन टचिंग लूप्स का आता है. ओके, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. डेल्टा निकालो. डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप का गेन का समेशन, 2 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का समेशन, 3 नॉन टचिंग लूप्स की गेन का समेशन. बट रिमेंबर जो आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हियर 1 इज प्रेजेंट, सो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स के गेन का समेशन प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का समेशन, माइनस साइन है, 3 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का समेशन, नेक्स्ट इज प्लस साइन, 4 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का समेशन, फिर माइनस आएगा 5 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का समेशन, एंड सो ऑन. ओके, अब 6 स्टेप में क्या करना है, टेक पाथ नंबर 1 P1 और F1 और डेल्टा 1 फाइंड आउट करो बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला. तो वो कैसा करना है वो मैं आपको बताऊंगा. एंड सिंपली फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, F1 और P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस P2 इंटू डेल्टा 2 प्लस P3 इंटू डेल्टा 3 प्लस P3 इंटू डेल्टा 4 डिवाइडेड बाय this delta. So delta will be found with the help of this